अनाथो दनाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
கல்யாண நிதயே நிதயர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமः. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்த. அஸ்ய ஸ்ரீ பகவதோ மகாபுருஷஸ்ய மகாவிஷ்ணோः ஆக்ஞயா பிரவர்த்தமானஸ்ய ஆத்ய பிரம்மணः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீபூ நீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. கூற்றமும் சாரா கொடு வினையும் சாரா தீ மாற்றமும் சாரா வகை அறிந்தேன். ஆற்றன் கரை கிடக்கும் கண்ணன் கடல் கிடக்கும் மாயன் உரை கிடக்கும் உள்ளத்தெனக்கு. திருமழிசை ஆழ்வாரின் அழகான பாசுரம். ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பரவாசுதேவராய் எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமானான ஸ்ரீமன் நாராயணன் வியூக ரூபமாய் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டும் பின்பு ஸ்ரீராமன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் முதலிய விபவ அவதாரங்களாய் பூலோகத்தில் அவதரித்தும் கடல்களில் சங்கமமாகும் ஆறுகளின் கரைகளில் வீற்றிருந்து அர்ச்சா மூர்த்தியாய் ஜீவகோடிகளை அனுகரிப்பதை அழகாக விளக்கும் பாசுரம் இது. பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனே இதோ இந்த திருமலையில் அர்ச்சா ரூபியாய் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக நின்ற கோலத்தில் தரிசனம் தருகிறார். அவரது உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. பக்தர்களே, கடந்த 3 நாட்களாக ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் நாராயணகிரி உத்தியானவனத்தில் ஸ்ரீ பத்மாவதி சீனிவாசர் பரிணயத்தை சேவித்து மகிழ்ந்தோம். பக்தர்களே, அந்த எம்பெருமானுக்கு அன்று நாராயணவனத்தில் தாயாரோடு நடந்த அந்த திருக்கல்யாணத்தை நேரில் தரிசிக்கும் பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இப்போது
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக இந்த 3 நாட்களாக அந்த கோலாகல வைபவத்தை நாம் தரிசித்து மகிழ்ந்தோம். இதோ இப்போது வழக்கம் போல ஆர்ஜித உற்சவமாக பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க நித்திய கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் கலந்து கொண்டு திருமலையானின் அருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி TK லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி விஸ்வக்சேரரின் ஆராதனமும் புண்ணியாகவாச்சன கைங்கரியமும் இப்போது நடைபெற உள்ளது. அந்த மந்திர ஒலிகளை இப்போது நாம் கேட்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, பகவானின் திருநாமமான அந்த கோவிந்த நாமத்தை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் நடைபெறும் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை பக்தி ஸ்ரத்தையோடு நாம் தரிசிப்போம். விஸ்வக்சேனர் எம்பெருமானின் சேனாநாயகர்களில் முதன்மையானவர். நம்மையெல்லாம் கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றி அனுகரிக்க எழுந்திருக்கும் வருணமாவாஹயாமி பிரதேசமாவாஹயாமி ரிக்தாமிருதமாவாஹயாமி யாதஸ்வத்வாவாஹயாமி வருணான்மஹ வருணஸ்யைதமாசனம் வருணான்மஹ இதம் பாத்தியம் சமர்ப்பயாமி இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி இதமாட்யம் சமர்ப்பயாமி ஏதே பிரதஸ்த்ராத்ரயாபரண उपवीत पुष्पगन्धधूपदीप अलङ्कारार्थाः इमेक्षा सर्वोपचाराः सर्वतीर्थ्यलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्घ्नेन समाप्यर्थं विस्सक्सेनाराधनं करिष्ये विस्सक्सेन दर्बाहं शङ्खचक्रसंनुतं व्याप्तिं सङ्केतं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाखमच्चेत् आग्नेयोस्माद्दिदामि हेत्वाश्वेदात्तं हितोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृक्षां दिशोऽब्दानामनादि यामे सान्दन्दान् दातु ओं भू पद्मागारमण्डले सक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्त्वतीं सूत्रतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्त्वतीसक्षेन सेदमासनं विस्सक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाट्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विस्सक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानं पास्येता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्यजा कुर्यात् सब्रवारस्य सक्सेन सभोजनं महद्विरग्नादः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायतः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायतः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायतः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रवी पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानुदेवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि प्रस्थेतो वृतानि वस्वसि इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा प्रसन्ति सूर्यः दिवीवचक्षरातुतं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रोणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रोणोदा सूर्यस्य प्रगंसते द्रोणोदा वीरविदुषण्णो द्रोणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदापविशं यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यगच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुदेत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूहतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माकं तण्डिलफलविस्नास्रोत्तन्द्रविषतत्तं शान्तत्वं सर्वपुण्यावतर्मणि पुण्याहं ब्रन्दोः ब्रन्दु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्दोः ब्रन्दु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्दोः ब्रन्दु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रोर्दस्वाः स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्करिष्णेमि स्वस्तिनां बृहस्पतिः ददातु ओं भूहतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माकं तण्डिलफलविस्नास्रोत्तन्द्रविषतत्तं शान्तत्वं सर्वपुण्यावतर्मणि स्वस्तिं ब्रन्दोः ब्रन्दु कर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं ब्रन्दोः ब्रन्दु कर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं ब्रन्दोः ब्रन्दु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यासाव्येन सद्यां तन्देवं तदेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धेन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूहतिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माकं तण्डिलफलविस्नास्रोत्तन्द्रविषतत्तं शान्तत्वं सर्वपुण्यावतर्मणि वृद्धिं ब्रन्दोः ब्रन्दु कर्मरुद्धतां करुणवृद्धिं ब्रन्दोः ब्रन्दु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं ब्रन्दोः ब्रन्दु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयो भोस्तानुमूर्जिदादना मेहरणाय चक्षे
योपस्वतमारुतस्तस्य भार्यतेन उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मथा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकाजाश्चातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नियागर्भं तद्रेविरूपास्थानापसकृत्स्यो न भवन्तु पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विचर्षणि यः पोतासपनात्मा पणन्तमा देवजनाः पणन्तमनवधिया पणन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण वराहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं अतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षाः यमो राजाः प्रभुनाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं षण्णो अस्तद्वदेः षञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राचाहांति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजां दिशमासाः पुत्रा मार्जयन्तां पदीचां दिशग्रा पशवो मार्जयन्तां उदीः चां दिशा बोषदेवनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां दोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तवस्पदे प्रजानि अस्मान्स्ता वेशवानमिव भवानः यत्ते महे प्रदन्ना शस्वने तदुपदेशं चतुष्पदे वास्तवस्पदे शक्मया संसदात् सक्षेमयि शरण्या गातवत्याः आवक्षेमत्यो गेवृन्नो यूजम्बातस्वस्तभिस्सदानः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्या विषन्ने तथा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतामहीयान् आत्मा गुहाजान्वितोऽस्यन्तोः तमः कदम्बस्य दिवीतशोको धातुः प्रसादाहान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताक्षः समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय शरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ताः अतः समुद्रा गृह्यत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः स्वस्तेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां बर्वीः कवीनां सर्वप्राणां मेषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागृसैतर्वनानागृसोमः पवित्रमत्येतरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजां जयन्तीं स्वरूपाम् अजोह्येकोंशमानो ज्वयन्तेज्याहात्येनां भुक्तभोगोमोजोन्या वर्णान्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्यान् सर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मा यथा भासा गुरोभारं निवेदयन् ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ஸ்ரீ விஸ்வசேனரின் ஆராதனமும் சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்த கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ஜன்மஸ்தேம பங்காதி லீலே என்றார் உடையவர். நித்திய விபூதியும் லீலா விபூதியும் எம்பெருமானுக்குள்ளேயே அடக்கம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் கலந்து கொள்ள அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்துக்கு இப்போது வந்துள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, திசைகள் 8: கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு, வடகிழக்கு, வடமேற்கு, தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு. இந்த ஒவ்வொன்றையும் பரிபாலனம் பண்ண எம்பெருமானால் நியமிக்கப்பட்டவர்களே அஷ்டத்துக்கு பாலகர்கள். அவர்கள் அனைவரும் இந்த அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் கலந்து கொள்ள ஆவாகனம் பண்ணுவது மிகவும் அவசியம். அதே போன்று பாலிகைகள் எனப்படும் அந்த நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களை கொண்டு பூஜித்து அவை செழித்து வளர்வதைப் போல திருமண தம்பதிகளின் வாழ்க்கையும் வளமாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வதும் இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தில் மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதையும் இதோ இப்போது முறையாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முற்காலங்களில் திருமணம் என்பது 5 நாட்கள் நடைபெறும். ஒவ்வொரு நாளும் ஹோமம் ஔபாசாசனாதிகள் நடைபெறும். 5ஆம் நாள் நிறைவு பெறும் போது இந்த நீர் தெளித்து வளர்க்கப்பட்ட முளைவிட்ட அந்த பாலிகைகளை கொண்டு போய் தம்பதிகள் இருவரும் மேல தாளத்தோடு கோவிலுக்கு சென்று அங்குள்ள குளத்தில் கரைப்பது காலம் காலமாக நடைபெற்று வரும் ஒரு சம்பிரதாயம். பக்தர்களே, அந்த நவதானியங்கள் செழித்து வளர்வது போல அந்த தம்பதிகளில் வாழ்வும் வளமாக இருக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கை. நம்முடைய பிரார்த்தனைக்காக திருக்கல்யாண உற்சவம்
கொண்ட மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்திலும் நமது திருமணங்களைப் போலவே எல்லா நிகழ்வுகளும் நடைபெறுகின்றன. இதோ இப்போது அங்குரார்ப்பணம் முடிந்து அடுத்து எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் ரட்சைகளுக்கு பூஜை. नागराजमावाहयामि साक्षेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रथमदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि. हरिः ओं. स्वस्ति नः मीतामिश्वना भगस्वस्ति देव्यै जननः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुबभ्रामहे सौं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो भवन्तनः विश्वेः देवानोः द्याः स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः तदाघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्चयञ्जस्स्त्याः त्रियं मनसातार्क्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தில் ரக்ஷை பூஜை இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ரக்ஷை என்பது காப்பு, கங்கணம் என்று கூட சொல்லலாம். கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் இந்த கங்கணம் என்கிற ரக்ஷாபந்தனத்துக்கு ஒரு மற்ற நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கும் முன்பாக ஆரம்பிக்கப்படும் முதல் நிகழ்வு. மணமகன் இனி இவளுக்கு நானே காப்பு, நானே பொறுப்பு, இவளது சுகமும் துக்கங்களும் என்னை சார்ந்தது என்கிற உறுதியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை மணமகளின் கரத்தில் கட்டுவது போல எம்பெருமான் தனது திருக்கல்யாணத்தில் உங்கள் அனைவரையும் நான் கைவிட மாட்டேன் என்று பக்தர்களாகிய நம்மிடம் சொல்வது போல அந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணின இந்த ரக்ஷையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இந்த ரக்ஷாபந்தனத்தை இன்னொரு வகையாகவும் கொள்ளலாம். அதாவது தீக்கண்களின் திருஷ்டி எதுவும் படாமல் இருக்க ஒரு காப்பாக பயன்படுவது. நமது பிள்ளங்களில் கூட பிறந்த குழந்தைக்கு காற்று, கருப்பு எதுவும் அண்டாமல் இருக்க வேப்பிலை காப்பு, வெள்ளிக்காப்பு, தங்கக்காப்பு என்று அணிவிக்கிறோம் அல்லவா? இவற்றுக்கெல்லாம் அந்த திருஷ்டிகளை போக்கும் ஒரு சக்தி உண்டாம். இங்கே இந்த திருக்கல்யாணத்தில் இந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தை எத்தனை கண்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே தரிசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றில் தீக்கண்களும் இருக்கலாம். அந்த தீக்கண்கள் பட்டு எம்பெருமான் தேவிகளின் அந்த நித்திய திருமேனிக்கு எந்த திருஷ்டியும் படாமல் இருக்கவும் இதோ இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிப்பதாக கூட கொள்ளலாம். சசங்க சக்கரம், சகீரிட குண்டலம், சபீத வஸ்திரம், சரசு ரிகேக்ஷணம், சகார வஷஸ்தல கௌஸ்துபஸ்ரீயம், நமாமி விஷ்ணும் சிரசா சதுர்புஜம், மேகசியாமம் பீத கௌசேய வாசம், ஸ்ரீவத் சாங்கம் கௌஸ்துபோத் வாசிதாங்கம், புண்ணியோ வேதம் புண்டரீகாயதாட்சம், விஷ்ணும் வந்தே சர்வலோகைக்க நாதம் என்று அந்த எம்பெருமான், அந்த லீலா மானுஷ விக்கிரகம், அந்த எம்பெருமானை திருக்கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகும் அந்த தேவிமார்களோ சௌந்தரியவதிகள். ஆகவேதான் இவர்களுடைய சௌந்தரியத்துக்கு எந்த விதமான குறையும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே வைகானச ஆகமப்படி எப்போதும் எம்பெருமானோடையே இருக்கும் கைங்கரிய பரரான அந்த ஆதிசேஷனை இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி பின்பு அந்த ரட்சையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்தில் இப்போது சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தில் ஆம்பத்தில் திருவங்கடத்தை எம்பெருமானை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அனைவரும் அழைத்ததை நாம் கேட்டோம் அல்லவா? இந்திரன் விடுத்த பெருமழையிலிருந்து ஆயர்களையும் பசுக்களையும் காப்பதற்காக கண்ணன் தானே அந்த கோவர்தனகிரியை குடையாய் தூக்கி பிடித்தபோது தனது தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டு இந்திரன் எம்பெருமானுக்கு கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் செய்கிறான். அத்துடன் கண்ணனிடம் ஒரு வரம் கேட்கிறான். எம்பெருமானே, என்னுடைய அம்சமாக பாண்டு மகாராஜனின் மனைவியான குந்தி தேவிக்கு ஒரு பையன் பிறக்கப் போகிறான்.
அந்த அர்ஜுனனுக்கு நீ தோழனாகவும் காப்பாளனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறான். அப்படியே வாக்கு தந்தாராம் கிருஷ்ண பகவான். அந்த கொடுத்த வாக்குக்காக அந்த பாண்டவ இளவலான அர்ஜுனனுக்கு கண்ணன் செய்த அந்த பேருதவிகளை நாம் மகாபாரதத்தில் பார்க்கிறோம் அல்லவா? இப்படி கொடுத்த வாக்குக்காக தன்னையே தந்த அந்த பகவான் நம்மை எல்லாம் இந்த கலியில் பிடியிலிருந்து காப்பதற்காக அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு சுகங்களையெல்லாம் விட்டு இறங்கி வந்தவர் அல்லவா? அவர் அதை மறந்து விடுவாரா என்ன? ஆனால் நாம் தான் அறியாமவர்களாச்சே. ஆகவேதான் அந்த பகவானுக்கு இந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து அவரது அந்த சங்கல்பத்தை நாம் நினைவுபடுத்துகிறோம். இதோ இப்போது அடுத்து தேவிமார்களிடம் வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, சௌந்தரியவதிகளான அந்த தாயார்களுக்கும் இப்போது ரட்சையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அல்லவா? ஆகவேதான் அந்த 2 தேவிகளுக்கும் அர்க்கியம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற அந்த ஷோடச உபச்சாரங்களை இதோ இப்போது செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீதேவி தாயாரான மகாலட்சுமியின் பரிவு எப்படிப்பட்டது என்றால், ஒரு குழந்தை தவறு செய்திருந்தால் கூட அதை பெரிதுபடுத்தாமல் அந்த குழந்தை மீது தந்தைக்கு கோபம் வராதபடி பார்த்து கொள்வாளாம். இதைத்தானே ஈசானாம் ஜகதோஸ்ய வெங்கடபதேர் விஷ்ணோர் பராம் பிரேசிம் தத்வக்ஷஸ்தல நித்யவாச ரசிகாம் தக்ஷாந்தி சம்வர்தினிம் பத்மாலங்கரத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாசனஸ்தாம் ஸ்ரீயம் வாத்சல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜெகன்மாதரம் என்கிற அந்த பிரபத்தி ஸ்லோகம் நமக்கு விவரிக்கிறது. பூமி தேவி தாயாரோ அவர்கள் செய்த மலையளவு குற்றங்களை கூட கடுகளவு சிறிதாக்கி எம்பெருமானின் அந்த திருவழிகளிலிருந்தே மறைத்து விடுவாளாம். இந்த 2 தாயார்களும் இருக்க நமக்கு என்ன குறை? ஆகவேதான் அந்த 2 தாயார்களுக்கும் அந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்துக்காக அந்த ரட்சையை இப்போது சமர்ப்பிக்கிறார் என்று கூட கொள்ளலாம். அதோ முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இப்போது சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடைவோம். அதோ அடுத்து பொறுமையின் பூஷணமாம் பூமண்டலத்தையே ஆள்கின்ற பூமிதேவி தாயார் ஸ்வேத வராக மகிஷி என்று பூஸ்துதியில் சுவாமி தேசிகன் பூஜித்ததை போல அந்த பூமிதேவி தாயாருக்கும் பூஜைகள் செய்து முடித்த பின்னர் இதோ இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை பகவானின் சார்பாக சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அந்த பூமிதேவி தாயாரையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடைவோம். அடுத்து இதுவரை இதோ இந்த திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான பங்கங்களோ தடைகளோ விக்னங்களோ வந்துவிடாமல் இருக்க அதோ இன்னொரு சுவாமி அவரது கரத்திலும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை கட்டுகிறார். பக்தர்களே, இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இனிதே முடிவடைகிறது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வர உள்ளோம். அது அக்னி பிரதிஷ்டை. அதை தொடர்ந்தாற் போல ஹோம காரியங்கள். அக்னியை சாட்சியாக வைத்தே திருமணங்கள் நடைபெறுவது நமது வழக்கம்தானே பக்தர்களே. ஆகவேதான் சகல தேவாதி தேவதர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணி ஹோம காரியங்களை நடத்தி இதோ அர்ச்சக சுவாமி தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். देव्या होतारवन्त पूर्वेरिष्टास्याम धनवास वीराः मही जन्तुम्यान् येनो मानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासादिवोदितामेध्यां पाप्मानं भजमानस्यन्तु पिबानस्सन्तः प्रदिश्यश्चन्ना माता पृथिवीतोगताता जातवेदो भुवनस्त्रियते हिंसतपसोज्जनिश्रुतेः अग्निमश्वत्थादेव्यो आज्ञायाहि वीते घृणानो विदाति निहोदा सत्सवृषि ऐतेन मुनिस्वा नूतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसेदप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मस्साधिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यापमासविष्टासश्चोन्मतश्चवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमवरुन्तमासं सोमो वीरं कर्मणिं धातु साधन्यं ठगं सभें पितृश्रवणं योदातस्मै
सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष्यग्नं देवतावध्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीनागसुतामित्रसत्रिवम् ॐ प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष्यग्नं देवतावध्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रिवं विघ्नं यजमांसदेहि ॐ प्रोक्ष पवित्रेः स्थो वैष्णव्ये स्थो अग्नेः स्थो वायुभूते विष्णोर्मनसा भूते स्थो यज्ञस्य पावने स्तः परशुरस्य पवित्रेः स्थो वैष्णव्यो देवसतपसवनात्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्विः विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भवति पश्चिमस्थो दत्तान् देवेभ्यो विष्णोऽस्तु भवसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानदेहि ॐ प्रणय सोमप्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानदेहि ॐ प्रणयादक्षप्रदो ब्राह्मीणतीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभवस्पृश्याभूं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि वैष्णवमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि सोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपामि इन्द्राष्टनपामि अग्निष्टनपामि सोमाष्टनपामि सोमाष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्टनपामि इन्द्राष्टनपामि वसुभ्योष्टनपामि मरुद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्याभूं श्रीविष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि शुभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदेवविश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरुन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्तर्तमृक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्तास्विदापनात् त्वच्छिद्रेण मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षतार्जुर्भिर्मामे सहस्रं चायचं तन्नीतं च प्रेतं च अर्भुतं च निर्भुजं च समुद्राश्चमिज्जन्तान्तश्चापराधक्षेमामे वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः बृहस्पतिसे नमः पंक्तिराजसे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः एतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देहतपस्वा षष्ठसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया ऐन्त्यद्मा आत्माजातवेदसिनेद्वसवदे जयवध्यजास्वान् प्रजापति ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेतया अस्मिन्नोपासनण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधासे आधस्वा समेध स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्याभूं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यो स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्थाः सरस्वते नमस्ताः दिवसतप्रासाभिः ओं भूवति पुरोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघारहोमान्ते स्वरमन्तरपर्यातृणात् प्राश्चात्तमुतो देवाय वैष्णवं करिष्ये आदितेन मुनिस्वान् सरस्तेन मुनिस्वा देहवितप्स्वा ओं मतो देवाः वन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवदं समूढमस्वाहं श्रेयः स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासुधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि पश्ये इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीवचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जाध्रुवागं दशमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देशतप्रासाभिः
విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మముర విదే విఘనసే నమః. శృతిస్మృతి నదీ పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తదకం శుద్ధం వందే శ్రీభనోర్నవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సంధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిరితే వృణవాయు కుబేరీషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చరవలయితే లవనేక్షుషరా సర్పితధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవ పరివృతే జంబూ ప్రక్షక్షక్రవంచ శాకసాన్మళి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తగుణ పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ రామతభద్రాశ్వకేతుకమానకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే
महासरोवराकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले 1 लक्ष योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्यजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ये यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाक लोहितधामा संघातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वशसहस्रावसाने एकैकतिलापरिषक्रमेण सर्वराष्ट्रपकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमतिराप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरमणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिविद्दिव्यविष्टादिवित्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसबालहस्पत्य भारद्वाज त्रियार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरसबालहस्पत्य भारद्वाज त्रियार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबालहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबालहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्ववेदलपञ्चार्षे प्रणानित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगोस्सङ्कल्पतनीयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्रणान्त काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनीयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीरुतां दास्यामि विष्णुमे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं
सुशीलाय सुमेधसी प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साग्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु. திருவேங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. தானத்தில் சிறந்தது கன்னியாதானம் என்பார்கள் பெரியோர்கள். அடுத்து தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பக்தர்களே, ஒரு மாதத்தில் முதல் 15 நாட்கள், அதாவது அமாவாசை தொடங்கி வரும் அந்த திதிகள் வளர்பிறை திதிகள் என்றும், பின்பு பௌர்ணமியிலிருந்து வரும் திதிகள் தேய்பிறை திதிகளாகவும் சாஸ்திரம் கூறுகிறது. இதில் சில திதிகள் ரொம்ப விசேஷமாக கருதப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஏகாதசியும் ஒன்று. நேற்று அந்த ஏகாதசி விரதத்தை நாம் அனைவரும் அனுஷ்டித்தோம் அல்லவா? அந்த ஏகாதசி விரத மகிமையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். மானிடராய் பிறந்த அனைவரும் ஜாதி மதம் எதுவும் அது போன்ற எதுவும் பாராமலேயே அனுஷ்டிக்க வேண்டியது ஏகாதசி விரதம். வளர்பிறை ஏகாதசி, தேய்பிறை ஏகாதசி இரண்டுக்கும் இடையே ஏற்றத்தாழ்வே கிடையாது. நெருங்கிய உறவினரின் பிறப்பு இறப்பு அதுபோல தீர்த்து வந்தால் கூட ஏகாதசி விரதத்தை மட்டும் விடவே கூடாதாம். பூசம், புனர்பூசம், ஸ்ரவணம், ரோகிணி இது போன்ற நட்சத்திரங்களில் ஏகாதசி வருமானால் அது மிகவும் விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஏகாதசி விரதத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலனையும் பெரியோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். முதல் நாள் தசமி என்று இரவு சாப்பிட்ட பின் மறுநாள் ஏகாதசி முழுவதும் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு படிப்படியாக உணவை கூட்ட வேண்டும் என்பதால் துவாதசி என்று பாரணையாக புளி இல்லாமல் அகத்திக்கீரை, நெல்லிக்காய், சுண்டைக்காய் ஆகியவற்றை உபயோகிக்கிறோம். இவை நமது ஜீரண சக்தியை அதிகமாக்கும். ஏகாதசி அன்று பூஜை செய்வது மிகவும் விசேஷம். அலைபாயும் மனசை கட்டுப்படுத்த விஷ்ணு புராணம், ராமாயணம், மகாபாரதம், பாகவதம் போன்ற இதிகாசங்களை பாராயணம் செய்வதும் கேட்பதும் மிகவும் நல்லது. துவாதசி அன்று அதிகாலையிலேயே சந்தியாவந்தனம் பூஜை முடித்துவிட்டு சீக்கிரமாக பாரணை செய்வது மிகவும் நல்லது. முதலில் துளசி கலந்த நீரை பருகிவிட்டு பின்னர் உணவை ஏற்பார்கள். பக்தர்களே, ஏகாதசி விரதம் இருந்த அம்பரீஷ மகாராஜாவை தூர்வாச முனிவரின் கோபத்திலிருந்து காத்தது இந்த ஏகாதசி விரதம்தானே. அதே போல ஆடி மாதம் வளர்பிறை வரும் அந்த ஏகாதசியை கோபத்ம விரதம் என்று சொல்வார்கள். தாமரை வடிவில் கோலமிட்டு அதன் நடுவில் எம்பெருமாள் திருமாலை ஆவாகனம் பண்ணி கோதானம் செய்வது மிகவும் சிறப்பு. கார்த்திகை வளர்பிறை ஏகாதசியை பீஷ்ம பஞ்சக ஏகாதசி என்பார்கள். 30 தேவர்களின் துன்பத்தையும் போக்கியதால் வைகுண்ட ஏகாதசியை முக்கோட்டி ஏகாதசி என்று போற்றுகிறார்கள். பக்தர்களே, ஏகாதசி விரதம் இருந்து அன்று ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்தை பாராயணம் செய்தால் நமக்கு கிரகதோஷங்கள் நீங்குவதோடு நமக்கு நோயற்ற வாழ்வு ஏற்படும் என்பார்கள். அது மட்டுமல்ல, மறுமையில் நமக்கு வைகுண்ட வாசல் எனும் சொர்க்க வாசல் திறக்கப்படும் என்று கூட நம்புவதுண்டு. பங்குனி மாதம் வருகிற வளர்பிறை ஏகாதசியை விஜய ஏகாதசி என்பார்கள். இந்த ஏகாதசி அன்று ஸ்ரீ ராமபிரான் இலங்கையை அழித்து சீதா தேவியை சிறை மீட்டதாக புராணம் கூறுகிறது. பக்தர்களே, அது மட்டுமல்ல, அந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கீதையை உபதேசித்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே இதை கீதா ஜெயந்தி என்று கூட சொல்வார்கள். அன்று பகவத்கீதை பாராயணம் செய்வது மிகவும் சிறந்தது. ஆக மொத்தத்தில் ஏகாதசி விரதத்தின் மகிமையை நாம் அறிந்தோமலா? அதே போல சித்திரை மாதம் வரும் அமாவாசைக்கு 3ஆம் நாள் வளர்பிறை திருதியை அட்சய திருதியை என்று பெரியோர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். அதனுடைய மேன்மைகள் இன்னும் பல உண்டு.
பகவான் எடுத்த தசாவதாரத்துகளின் போது அவதாரமான அந்த பரசுராமரின் அவதார தினம் இந்த திருத்தியை தானாம். தாய் தந்தை சொல்லே உயர்வேதம் என்று உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டிய அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் அல்லவா? வேதவியாசர் மகாபாரதத்தை எழுதத் தொடங்கிய நாளும் இன்றுதான். அதன் பலனாக நமக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா அருளிய பகவத்கீதையும் கிடைத்ததல்லவா? அதே போல தனது பால்ய நண்பனான சுதாமா என்கிற குச்சேலனின் ஒரு பிடி அவலை ஏற்று அந்த குச்சேலரை குபேரனாக்கிய நாளும் இந்த திருதியைதான். பகீரதனின் தவத்தால் கங்காதேவி பாரதம் செழிக்க பூமியிலிருந்து வந்த நாளும் இன்றுதான். பக்தர்களே, இதே போல பாண்டவர்கள் வனவாசத்தின் போது சூரிய பகவானை வேண்டி அட்சய பாத்திரத்தை பெற்ற நாளும் இந்த அட்சய திருத்தியை நாள்தான். பகவான் கண்ணனையே நண்பனாகவும் தன்னை காப்பாற்றும் இரட்சகனாகவும் கொண்ட அந்த பாண்டவர்கள் எத்தனை பாக்கியசாலிகள்! அது மட்டுமல்ல, தன்னிடம் பிக்ஷை என்று கேட்டு வந்த அந்த பால சந்நியாசியான ஆதிசங்கரருக்கு ஏழை பெண்மணி தன்னிடம் இருந்த ஒரே ஒரு நெல்லிக்கனியை தந்து அவர் அருளிய கனகதாரா சோஸ்திரத்தால் அவளுடைய கூரை வீட்டிலிருந்து தங்கக் கனிகளாக பொழிந்ததும் இந்த அட்சய திருதியை நாளில்தான். ஆக இந்த அட்சய திருதி நன்னாளில் நாம் எந்த நன்மையான காரியங்கள் செய்தாலும் அது வளரும் என்பது உண்மை. ஆகவே பக்தர்களே, இதோ இப்போது எம்பெருமானின் திருக்கரத்தால் தாயார்கள் இருவருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்க தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த பகவானை மனதிலே தியானித்து கொண்டு இந்த மங்களகரமான நிகழ்வை இப்போது தரிசிப்போம். சுமங்களீரியம் மதுரிமாகும் சமேதபஸ்யதா சௌபாகியமத்வை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதனா श्रिये जात श्रिय निर्याय श्रियंबजोचरद्भ्यो ददाति श्रियंबसानामृतमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रजापतिस्तमगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेदपश्यता सौभाग्यमत्वै तत्त्वाजाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. ಎಟ್ಟುಗೂಡೆ ಬೆಂಡ್ಲಿ
चतुर्मुक्तिभाषात् तदेकं राजावृणोन् मन्यतां धेगुस्त्रीपौत्रमहनरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुडिया त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानसदाशाः स्तेजमानो विर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोद्दर्शिं समानाय प्रमोसि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्य डोभयासीष्ठाः अजुष्ठो वण्डितमस्सोषिडानो विश्वाद्वेषागं प्रमुच्यत् स्वाहा हत्वन्नोऽग्ने मो भवति नेतुस्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णगम्राणो विहिमणीकं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेषजग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अयते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासाभिः ओं भूः इति पुरोक्तमुष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये अयते नमः निस्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रसव इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूतेऽग्नौ लाजानौवन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः उदाजुसास्वायुषो दोहदेनागुमृषेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अणु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महिद्भ्यः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूतेऽग्नौ लाजानौवन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः उदाजुसास्वायुषो दोहदेनागुमृषेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अणु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महिद्भ्यः इमां राजानौपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूतेऽग्नौ लाजानौवन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः उदाजुसास्वायुषो दोहदेनागुमृषेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अणु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महिभ्यः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अयते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देशवतः प्रासाभिः ओं भूभवति पुरोत्युष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तर्पयात्रनात् प्रायस्तात् समतो देवायति वैष्णवं करिष्ये अयते नमः निस्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाहोन्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तसां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवदं समूढमस्वां श्रेयः स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसेदोः वृदानि वससि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवो जार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा इते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासाभिः ओं भूः अतिविरोत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलम् उपरिष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमते मुनिस्वा सरस्ते मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्सकरणोत्तीर्तं विद्यानून महाकरम् अग्निस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वतः हुतावतेनां कामानागसमुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादुष्टं सर्वत्रैवानादुष्टं देवतोऽस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्रम् इन्दाभूदग्निस्तुत्तनराः जातवेदावचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्म्यश्वाज्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यैः स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यैः स्वाहा समृद्धैः स्वाहा सर्वसमृद्धैः स्वाहा आस्त्रायुतमत्यास्त्रायुतं षट्कुटमत्नोक्तञ्जज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नः पर्वान् प्रदेति कल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा यदोश्यसदिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमयिधैः स्वाहा यमस्सदिमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यसदिमे
चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमसदि मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्ते सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनि रावणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधि वनस्पति गन्धर्वास्य भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधि वनस्पति गन्धर्वास्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यैरसु संवर्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छत् स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्ते सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनि रावणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषधि वनस्पति गन्धर्वास्य त्रिप्यन्तां वेदक्षपितामह पितामह साक्षिमस्तत्रिप्यन्तां तेन मुखस्थाः अणुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देशे तप्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा क्षमस्योमि अक्षमा मे पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णोः सर्वसि पश्चिमतः विष्णोः सर्वसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन् त्वामिति जुहोति आप्यायन् त्वां मा बभोषधयो मरुतां पृषधयश्च दिवं गच्छतो नौरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्धुतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रियायुषं त्रिदेवानाः त्रियायुषं तन्मेऽस्तु त्रियायुषं दीर्घायत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषम् दीर्घायत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषम् आपोहिष्टामय भोस्थान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमार्दस्तस्य बाध्यतेन उषधीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोश्चक्ष्याय जन्मधः आपो जनेधाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योध्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे वंश मे सदश्च मे यज्ञवते नमश्च यत्तेः न्यूनं तस्मै देवदत्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सत्यः नम्बा पुष्पैः नम्बा होत्रे नम्बा वृत्तभाग्ने जातवे से भगवान् पञ्चतवो नमः कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा वा प्रतिसभावादे करोमि सकलं ब्रह्मे श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். தம்பதிகள் இருவரும் தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் ஒரு நிகழ்வு. பக்தர்களே, எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்த ஒரு ஆண்மகனும் பெண்ணும் திருமணம் என்கிற பந்தத்தில்
சேர்க்கப்படுகிறார் அல்லவா? ஆகவே அதில் ஒரு அந்நியத்தன்மை இருக்கும். இது விலக இது போன்ற சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகளை திருக்கல்யாணத்தில் வைத்துள்ளார்கள் பெரியோர்கள். இந்த தேங்காய் உருட்டுதல் நிகழ்வின் போது வேங்கடவர்க்கென்று என்னை விதிக்கீற்றியே என்று பாவை நோம்பு நிற்ற ஆண்டாள் நோய்ச்சியார் அந்த கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அவள் அதை தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்ன வாரணம் ஆயிரம் பாசுரங்களை பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இனி அதற்கு அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல் என்ற நிகழ்வுக்கு வந்துள்ளோம். திருமங்கல்ய தாரணம் ஆன பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதியர் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்வதும் வழக்கம்தானே. திருமலையானின் திருக்கல்யாணத்தில் இதுவும் முறையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. திருமலைக்கு புஷ்ப மண்டபம் என்று ஒரு பெயருண்டு. ஸ்ரீ ராமானுஜரின் சிஷ்யரான அனந்தாழ்வான் அவரது ஆணைப்படி திருமலை வந்து தன் கைகளாயே குளம் வெட்டி சுற்றிலும் நந்தவனம் அமைத்தாராம். அந்த அனந்தாழ்வான் தோட்டத்தில் இல்லாத புஷ்பங்களே இல்லை. முன்பெல்லாம் எம்பெருமானின் கோவிலுக்குள் யாமுனத்துறை என்கிற இடத்தில் எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் புஷ்ப மாலைகளை கைதேர்ந்த மாலை தொடுப்பவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு தொடுப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அப்போது அவர்கள் கோவிந்த நாமத்தை ஜபித்தவாறே அந்த மாலையை தொடுப்பார்களாம். பக்தர்களே, எத்தனை புண்ணியசாலிகள் பாருங்கள். புஷ்ப பிரியனான திருவேங்கடவன் சூடிய மாலையை இதோ இப்போது திருமார்பில் நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின் அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அதே மாலை இப்போது எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் இதோ கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து அந்த எம்பெருமான் சூடிய மாலையை அவருக்காகவே பூமாலையும் பாமாலையும் கொடுத்த அந்த ஆண்டாள் பிராட்டிக்கும் இதோ இப்போது அந்த மாலையை கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு இரு கண்கள் போன்றவர்கள் தானே தேவிகள். இதில் வலது கண் உயர்ந்ததா இடது கண் உயர்ந்ததா என்று பார்ப்போமா? இரண்டும் சமம் அல்லவா? அதே போல இப்போது பூமி பிராட்டிக்கும் எம்பெருமான் சூடிய மாலையை சமர்ப்பித்துவிட்டு அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அதை அவளது மணாளனான அந்த திருவேங்கடனிடமே கொண்டு வந்து இதோ இப்போது சேர்க்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவிகள் சூடி கொடுத்த மாலை திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானுக்கு எத்தனை ஓப்பாக இருந்திருக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. அடுத்து தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நமக்கு தர உள்ளார்கள். பக்தர்களே, அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் தாயார்களின் சிரசிலும் சேர்ப்பார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவர்களே பூமாரி பொழிவது போல் இருக்குமாம். அடுத்து கற்பூர மங்களஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே இந்த திருக்கல்யாணத்தை சேவிக்க வழி செய்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి